مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت بایزید بسطامی، حضرت ہشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کے بعد جو چیزیں آج جانی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے ہی دنیا کو بتا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نوازۂ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جذام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔
तीसरा, हवा के जरिए से जो जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और इंसान बीमार होता है। और चौथा, किसी बीमार इंसान के जिस्म से बाद मर्तबा ऐसी शुआएं निकलती हैं जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म को बीमार करती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोशनी से, शुआओं से इंसानी जिस्म बीमार भी हो सकते हैं और सेहत याफ्ता भी। उस दौर के लोग हैरान हो गए। चलो मान लिया अनासिर ज्यादा कम होने से इंसान बीमार होता है, मान लिया कि ग़िज़ा गलत खाने से इंसान बीमार हो गया, मान लिया, और जरासीम दाखिल होने से इंसान बीमार हो गया, मान लिया, लेकिन किसी के जिस्म से शुआएं निकलती हैं और किसी को बीमार कर सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? बिलाखिर 17वीं और 18वीं सदी के बीच में रूस का एक शहर है नोवो, उन्होंने इस बात पे रिसर्च की। मुसलसल 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि इमाम जाफर सादिक का नजरिया बिल्कुल सही है। बाज मर्तबा इंसान के जिस्म से कुछ अल्ट्रा वायलेट ऐसी रेजेस निकलती हैं जो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। बीमार इंसान की शुआएं इन सेल्स पे असर करती हैं और यूं इंसान बीमार होने लगता है। और फिर अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन बीमारियों का पता लगाया जाए कि जो इंसान के जिस्म से निकली हुई शुआओं के सबब होती है। तो इस पे डॉक्टर जॉन मॉन्ट ने एक किताब लिख दी कि वाकई काफी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान के जिस्म की शुआएं भी सामने वाले सेहतमंद इंसान को बीमार करती है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने इंसानों को बता दिया। और इस नतीजे को बेस बना के उन्होंने रोशनी के वसीले से इंसानी जिस्म का इलाज करने की भी शुरुआत की और वहीं से शुआओं से इलाज करना शुरू हो चुका। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई बीमारियां वजूद में आएंगी और इंसान की उम्र दिन ब दिन कम होने लगेगी। बुकरात, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसने ये तस्लीम किया कि नई नई बीमारियों का सबब माहौल की आलूदगी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूँ कि वो अपने बच्चों को दिल की तरफ सुलाए, इससे बच्चा कम बीमार होगा और सुकून की नींद सोएगा। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई जिसका नाम था कॉर्नल यूनिवर्सिटी। उसमें इस बात पे तहकीक हुई कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शीर ख्वाह बच्चे को माँ की उल्टी तरफ सुलाने के लिए क्यों कहा था। बिलाखिर उन्हें जवाब मिल गया और उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया और कहा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को महसूस करता है और जब बाहर निकलता है तो उसको वो धड़कन महसूस नहीं होती, तो बेचैन रहता है। अगर बच्चे को माँ के दिल के करीब सुलाया जाए तो वो वही धड़कन जो उसे पेट में सुनाई देती थी उसे महसूस करेगा और इत्मीनान से सोएगा और यूं बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा, सुकून की नींद पाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले अरस्तु की इस सोच को समझते थे कि ये दुनिया 4 अनासिर पे मबनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। दुनिया जिसको अनसर समझती है, असल में ये अनसर नहीं बल्कि अनासिर का मजमुआ है। मिट्टी में भी अनासिर है, हवा में भी अनासिर है, पानी में भी अनासिर है, आग में भी अनासिर है। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जोसेफ ने इस बात को साबित किया कि उन्होंने सच कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी में एक अंसर ऐसा है जिससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। उस दौर के लोग हंसते रहे कि पानी से लोहा कैसे पिघलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी भी आग लगा सकता है। उस दौर के लोग हंसते रहे, लेकिन 1766 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कॉल को समझा और पानी पे रिसर्च की और दुनिया के नजदीक ये बात रखी कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके मुसलमानों के इमाम
जाफर सादिक को सलाम करके कहा कि जो उन्होंने कहा वो सच था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले लोग ये समझा करते थे कि आंख से रोशनी निकलती है तभी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आंखों से रोशनी निकलती नहीं, बल्कि चीजों पे जो रोशनी लगती है उस रोशनी के अक्स को आंख महफूज करती है और उस वक्त वो अक्स उल्टा होता है। इंसान का दिमाग उस अक्स को सीधा करके दिखाता है। लोग इस बात का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट रॉगन बिगन ने इस बात को तरजीह दी कि मुसलमानों के इमाम कहते थे कि आंख से रोशनी निकलती नहीं, बल्कि आंख जो चीजों पे रोशनी पड़ती है उसका अक्स दिमाग तक पहुंचाती है। तो जब इस सोच पे काम किया गया तो 1608 में इस नजरिए को परखा और ये समझा कि अगर आंख और दूर की चीजों के बीच में कोई ऐसी चीज रखें जो दूर की चीजों और आंख के दरमियान रखने से दूर की चीजों पे पड़ती हुई शुआएं आंख तक वाज़ेह हो, तो ऐसे इंसानी आंख दूर की चीज करीब होते हुए देख सकती है। और बिल आखिर उन्होंने मंजिल पाली और इस बात को तस्लीम किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो चांद इंसान इतना छोटा सा देखता है, असल में ये एक छोटी सी दुनिया की मिसल है और इसमें अल्लाह ने पहाड़ तश्कील दिए। लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो ने जब उसी दूरबीन से जो इमाम के अकवाल की रोशनी में बनाई गई थी चांद को देखा तो वो दंग रह गया और दुनिया को चीख चीख के बताने लगा कि मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने सच कहा था। ये चांद दूर से एक दुनिया लगती है और इसमें पहाड़ बसते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सितारे जो तुम एक नुक्ते की तरह आसमानों पे देखते हो, असल में इन सितारों में बाज़ सितारे ऐसे हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और उनके नजदीक हमारा सूरज एक बुझे हुए चिराग की मिसल है। लोग हंसते रहे कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात पे जब मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे और उनके नजदीक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये कॉल आया तो उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को वजूद दिया और 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा ऐसे सितारे देखे गए जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। और उन तमाम साइंटिस्ट ने तस्लीम किया कि मुसलमानों का इमाम जाफर सादिक सच्चा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह दिन और रात होते हैं इसमें जमीन का घूमना है। लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, अगर जमीन घूमती तो हम गिर जाते, लेकिन इस बात को तस्लीम किया गया कि जमीन घूमती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह हमारा सूरज और हमारी दुनिया है वैसे ही इन आसमानों में लाखों सूरज और एक एक सूरज की कई कई जमीनें हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन 1970 में ये तस्लीम किया गया कि इमाम जाफर सादिक ने जो कहा वो सच है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात की हर चीज हरकत करती है। लोगों ने उस दौर मजाक समझा कि पत्थर पड़ा है कैसे हरकत कर रहा है, ये चीजें रखी हुई हैं कैसे हरकत कर रही हैं। लेकिन जे थॉमसन, नीम बोहर और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ दिया कि जो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया वो सच है। हर जानदार और बेजान चीजों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हरकत करते हैं। एटन कोल्बर 1972 में जब इसने हिब्रू यूनिवर्सिटी में तदरीस शुरू की तो इसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा कि उन्होंने 400 ऐसे शागिर्द दुनिया को दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। अगर वो 400 शागिर्द ना होते तो आज ये दुनिया इस जगह ना होती जिस जगह आज है। आपकी सखावत का आलम ये था कि खुद भूखे रह के दूसरों का पेट भरना आपकी आदत थी, और आपके अखलाक का आलम यह था कि एक मर्तबा आपके घर में आपके कनीज के हाथों से आपका बच्चा गिर गया और वो गिर के मर गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जैसे ही घर में दाखिल हुए उस कनीज ने इमाम के चेहरे को देखा। इमाम ने जैसे ही कनीज के चेहरे पे खौफ देखा फौरन कह दिया, ऐ मेरी कनीज, मैंने तुम्हें आजाद किया। कनीज कदमों में गिर के कहने लगी कि ऐ मेरे मौला, मैंने आपका बच्चा मार दिया और आप मुझे आजाद कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो खौफ है उसका ये कफ़ारा है कि तुम्हें आजाद किया जाए। जाओ
मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। लोगों के दिलों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ने लगी। उस दौर दुनिया के तमाम आलिम से जब कोई पूछता था कि तुमने ये इल्म कहाँ से सीखा, तो सब ये कहते थे हमने ये उलूम नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सीखे। आपके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द ना होता तो आज ये नौमान इमाम आजम ना होता। आपकी शोहरत तो इज्जत बढ़ते हुए देख के अब्बासी खुलफा और भी हसद करने लगे कि बादशाह हम हैं, हुकूमत हमारी है, लेकिन लोग इन फटे पुराने कपड़े पहनने वाले आले अली आले फातिमा की इज्जत क्यों किया करते हैं। तो बस यूं सादात पे खुल्लम खुल्ला जुल्म शुरू हो गया। सादात को कत्ल करने का सिलसिला कायम हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे पे पाबंदी लगा दी गई और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को खरीद किया गया। जहाँ जहाँ जो सैयद मिलता था उसका सर तन से जुदा होता था और यूं सैयद और सादात ने हिजाज छोड़ना शुरू कर दिया। कोई सिंध की तरफ रवां हुआ तो कोई खुरासान की तरफ, और वहाँ वक्त के बादशाह ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि जो इमाम जाफर सादिक से मिलेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से शरीयत मोहम्मदी में तरामीम की गई। तारीख ने लिख दिया कि उस दौर से पहले नमाज का तरीका एक था, ना कोई फिरका था, ना कोई मसलक था। उस दौर के बाद कुछ लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मसलक और बताई हुई शरीयत के उसूल जो उन्होंने अपने नाना से सुने उन पे अमल करते थे, तो कुछ वक्त के बादशाह के जो दरबारी इमाम थे उनकी बताई हुई शरीयत पे अमल करते थे। और तभी से मसलक और फिरकों के बनने का आगाज हो गया। बाद मर्तबा मंसूर ने आपको कत्ल करवाना चाहा। एक मर्तबा उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपनी दरबार में तलब किया और सबसे कहा कि जब इमाम जाफर सादिक मेरे महल आए कोई उसकी ताजीम नहीं करेगा, कोई उसको सलाम नहीं करेगा, हम उसकी तौहीन करेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह के महल में दाखिल होते हैं, वो खुद अपनी जगह से उठ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हाथ चूम कर अपने तख्त पे नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक को बिठाते हैं। जब हद से ज्यादा घबराहट मंसूर के वजूद पे हावी हुई तो उसने पानी तलब किया। मंसूर का गुलाम जब पानी लेके आया तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, रुको ऐ बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर तुम्हें फिल वक्त ये पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं कैसे भी करके पानी हासिल करूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अगर इस वक्त तुम इस पानी की कीमत लगाओ तो क्या कीमत लगाओगे। उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इमाम ने कहा, पानी पी लो। उसने जैसे ही पानी पिया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर ये पानी जो तुमने अभी पिया तुम्हारे जिस्म से बाहर न निकले और नासूर बनने लगे, बीमारियां होने लगे, तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं किसी हकीम को बुलाऊंगा और कहूंगा मेरा इलाज कर। इमाम ने कहा, उसकी क्या कीमत लगाओगे। उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत दे दूंगा। इमाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ बादशाह कहलाने वाले, देख एक इंसान की औकात क्या है। तुम्हारी ये पूरी दौलत सिर्फ इस थोड़े से पानी जितनी है। तुमने आधी दौलत पानी पीने में खत्म कर दी और आधी दौलत पानी निकालने में। फिर भी तू तकब्बुर करता है, फिर भी तू अपने आप को बादशाह समझता है। तेरी कुदरत तेरे जिस्म पे नहीं और तू जमीन की बात करता है। इंसान के लिए बेहतर ये है कि वो अपने आप को हकीर समझे। जब बेइंतहा अब्बासी खुलफा जलने लगे तो उन्होंने इमाम को जहर दिलवाया। बाज मर्तबा जहर देने के बाद बिलाखिर 15 शवाल 148 हिजरी बमुताबिक 14 दिसंबर 765 ईस्वी में अंगूर में जहर देने के सबब आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए और इंसानों ने अपने हाथों से इल्म का ये दरवाजा भी अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया। आज भी पूरी दुनिया उस रसूल अल्लाह के नवासे को दुनिया का सबसे अजीम साइंटिस्ट तस्लीम करती है। सलाम हो नवासाए रसूल, इमामों के इमाम, इमाम जाफर सादिक पर। इमाम
جعفر صادق پر، جعفر صادق پر۔